یسوع کے معجزے پارٹ 2۔ بچوں، آج ہم دیکھیں گے یسوع نے کس طرح کوڑ کے مرض سے لوگوں کو شفا دی۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کوڑ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں پہلے جسم کے سارے جوڑوں میں درد ہوتا ہے، پھر بدن کے اعضاء گل سڑ کر جسم سے جدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ بیماری ناقابل علاج تھی، موسیٰ کی شریعت کے مطابق ایسا شخص اپنے گھر میں یا لوگوں کے درمیان نہیں ٹھہر سکتا تھا، کیونکہ اس وبا سے دوسرے بھی متاثر ہو سکتے تھے۔ ایسے افراد کو دوسروں سے دور پہاڑیوں میں رہ کر آہستہ آہستہ مر جانا ہوتا تھا۔ بچوں، کیا وہ بہت ہی بے کس اور تنہا رہ جاتے؟ کوڑ کے مریض کے لیے موسیٰ کا قانون، احبار 13 باب 46 آیت۔ جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا، اور وہ ہے بھی ناپاک، پس وہ اکیلا رہا کرے، اس کا مکان لشکرگاہ کے باہر ہو۔ اگر وہ کسی مجمع میں جانا چاہتے تو ان پر کیا کرنا لازم تھا؟ احبار 13 باب 45 آیت۔ اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو، اس کے کپڑے پھٹے اور اس کے سر کے بال بکھرے رہیں، اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈانکے اور چلا چلا کر کہے، ناپاک ناپاک۔ اس کا مطلب دوسروں کو یہ بتانا تھا کہ ایک کوڑی آ رہا ہے۔ تب ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا۔ آئیں یسوع کو دیکھتے ہیں، اس نے اپنی مہم کے آغاز ہی میں کوڑیوں کو مرض سے کیسے نجات دی۔ یسوع نے کوڑ کے مریض کو شفا بخشی۔ ایک کوڑ زدہ شخص، لوکا 5 باب 12 آیت۔ جب وہ ایک شہر میں تھا تو دیکھو، کوڑ سے بھرا ہوا ایک آدمی یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا اور اس کی منت کر کے کہنے لگا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ مرکز 1 باب 41 سے 45 آیت۔ اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا۔ اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا، خبردار، کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ بچوں، یسوع نے ہاتھ بڑھا کر کوڑی کو چھو لیا۔ یسوع نے کوڑی کو ناپاکی کے سبب سے دتکارا نہیں، بلکہ اس پر لطف و کرم کیا۔ جب یسوع نے کہا، پاک صاف ہو جا، کوڑ فوراً اس سے دور ہو گیا۔ یسوع نے یہ معجزہ اپنی تبلیغی مہم کے ابتدائی روز و شب میں ظاہر کیا۔ یسوع نے اس شخص سے کہا بھی کہ یہ بات کسی کو نہ بتائے، مگر صحت پانے والے کوڑی کا حال تو اس اندھے جیسا ہو گیا جو بینائی ملنے پر اپنی خوشی دبا نہ پایا تھا۔ اس نے بھی سب کو بتا دیا کہ کوڑ سے یہ شفا
उसे यसू ने बख्शी है। यसू नहीं चाहता था बहुत से लोग उसकी तरफ मतवज्जा हों। वो खामोशी और गुमनामी में रहकर खुदा के काम करने चाहता था। लोगों के दुख मिटाने चाहता था। अभी उसके सलीब पाने का वक़्त नहीं आया था। यसू ने दूसरे कोड़ज़दा अफराद को भी शफा बख्शी। आए एक नजर डालते हैं। यसू ने 10 कोड़ियों को शफा बख्शी। लूका 17 बाब 11 से 19 आयत। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, यसू, साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देख कर के मैं शफा पा गया। बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यसू के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। और वो सामरी था। यसू ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। बच्चों, इस बार यसू ने कितने कोढ़ियों को शफा दी? 10। क्योंकि वो आम लोगों के साथ नहीं रह सकते थे, चुनाचे सब कोढ़ी किसी अलग जगह इकट्ठे रहने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि यसू कहीं करीब से गुजर रहा है। वो ये भी जानते थे कि उन्हें आम लोगों से दूर रहना है। चुनांचे यसू की तवज्जा पाने को जोर जोर से पुकारने लगे। यसू रुक गया, उनसे कहने लगा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। यसू के इसी एक जुमले से वो सब साफ हो गए। बच्चों, मूसा की शरीयत के मुताबिक अगर कोई कोढ़ी सेहतयाब हो जाता, उस पर लाजिम था कि हैकल को जाए, खुद को सेहतयाब साबित करने के लिए अपना बदन काहिन को दिखाए। काहिन को मुतमईन करने के बाद वो अपने खानदान या दूसरे लोगों के साथ रह पाता। यसू ने काहिन को दिखाने की नसीहत की। मतलब ये था कि अब वो शफा पा चुके हैं। बच्चों, इस बार यसू ने किसी कोढ़ी को हाथ नहीं लगाया और ना ये कहा कि तू साफ हो गया, बल्कि ये कहा कि जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। ये तो बहुत शानदार बात हुई। क्या यूं ही नहीं? जब वो हुक्म की तामील में काहनों के पास पहुँचे तो वाकई सेहतमंद हो चुके थे। ताहम ये सेहत सिर्फ बदन की हद तक थी। सिर्फ एक कोढ़ी यसू का शुक्र अदा करने वापस आया। और वो एक सामरी था। यहूदियों की नजर में सामरी गैर कौम है, इसलिए यहूदी उनसे कोई राहो रस्म नहीं रखते। मगर ये सिर्फ सामरी ही था जिसने इसराइल के खुदा की शान बयान की। जब उसने खुदा की सताइश की तो दरअसल उसने इसराइल के खुदा की कुव्वत और इख्तियार पर यकीन कर लिया। चुनांचे यसू ने कहा,
क्योंकि इस सामरी ने इसराइल के खुदा पर ईमान कायम किया, इसलिए वो भी खुदा की तरफ से इसराइल को दी गई अमान में शरीक हो गया। उस सामरी ने मौका से फायदा उठाते हुए अपने बदन की शफा तो पाई ही थी, साथ ही साथ ईमान की दौलत पाकर जान भी पनाह के हाथों बचा ली। बच्चों, यसू ने कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। क्योंकि यसू की निजात हमेशा तक के लिए है। जो लोग उस पर ईमान लाएंगे निजात पाएंगे, और जो ईमान नहीं लाएंगे महरूम रहेंगे। चुनाचे कोई फना की बीट चढ़ जाता है या अपनी जान मौत के हाथ से बचा लेता, इसका दारोमदार उसकी अपनी तलब पर है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो पैदाइशी तौर पर निजात याफ्ता हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी की दुनिया में पहचान क्या है, उसे हर हाल में ये फैसला करना है, क्या वो यसू को जानना चाहता है, उसे अपना नजात दहिंदा मानना चाहता है, यीशु से प्यार करता। बच्चों, हमने कितने ही वाकयात सुने जिनमें यसू ने पानी से शराब बनाई, खुराक में ढेरों इजाफा किया, अंधों और कोड़ियों तक को शफा याब किया। आए अब उन हालात और वाकयात का जायजा लेते हैं जब यसू ने एक फालज ज़दा शख्स को शफा दी। मफलूज की मोजजाती शफा। कुफरनहूम का एक मफलूज। मरकस 2 बाब 1 से 2 आयत। कई दिन बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। लोका 5 बाब 18 से 24 आयत। और देखो कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें, और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरील में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा कि ए आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे कि हे, ये कौन है जो कुफर बकता है? खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है? यसू ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपना खटोला उठाकर अपने घर जा। मरकस 2 बाब 12 आयत। और वो उठा और फिल फोर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। लोका 5 बाब 26 आयत। वो सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी। बच्चों, 4 अफराद ने मिलकर छत फाड़ डाली ताकि मफलूज को यसू के सामने लाकर डाल दें। यसू ने उनकी मुश्किलात के आगे डट जाने और कामयाबी की लगन देखी।
उनका यकीन देखा कि इस तरह मरीज को शफा मिल सकती है। यसू को उन 4 दोस्तों का ईमान बहुत पसंद आया। चुनांचे उसने मरीज को शफा बख्श दी। बच्चों, मफलूज और उसके 4 दोस्तों का ईमान था। यीशु खुदा का बेटा है। उनके इस ईमान की वजह से खुदा की तरफ से गुनाह माफ करने की ताकत के बल पर यसू ने पूरे इख्तियार से मफलूज को बता दिया कि उसके गुनाह माफ हो चुके। मगर शरीयत के आलिमों और पास खड़े फरीसियों को यकीन नहीं था कि यसू खुदा का बेटा है। वो यसू की ये बात हजम ना कर पाए कि उसे गुनाह बख्शने का भी इख्तियार हासिल है। आए एक ऐसे मफलूज के हालात देखते हैं जिसका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं था कि उसकी मदद करता। बैत हसदा के हौज पर एक मफलूज। यूहन्ना 5 बाब 1 से 3 आयत। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई और यसू यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के पास एक हौज है जो इब्रानी में बैत हसदा कहलाता है और उसके 5 बरआमदे हैं। इनमें बहुत से बीमार और अंधे और लंगड़े और पस मुर्दा लोग जो पानी के हिलने के मुंतजर होकर पड़े थे। यूहन्ना 5 बाब 5 से 9 आयत। वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यसू ने पड़ा देखा और ये जानकर के वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। मफलूज शख्स के ख्याल में यसू का सवाल कुछ अजीब सा था। हौज के पास हर शख्स शफायाबी की हसरत लिए पड़ा था। चुनाचे उसने यसू को बताया, वो इसलिए अभी तक वहाँ पड़ा है क्योंकि किसी ने उसकी मदद नहीं की कि वक्त आने पर उसे हौज में डालता। यूहन्ना 5 बाब 8 आयत। यसू ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। अरे वाह! यीशु ने कुदरत और इख्तियार पर एक ठोस लहजा में बात की। जब उसने कहा, उठ! इसी लम्हा मफलूज के जिस्मानी कुलियात में जिंदगी और कुव्वत की लहर दौड़ गई और यूं यसू की बख्शी ताकत से माजूर की टांगों में जान पैदा हो गई। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वो दिन सबत का था। बच्चों, यसू के काम तो नहायत ही अजीब और शानदार थे। शादी की महफिल में यीशु ने नौकरों को नहीं बताया था कि पानी शराब में तब्दील हो चुका है। उसने सिर्फ ये कहा, अब निकाल कर मेरे मजलिस के पास ले जाओ। 5 रोटियों और 2 मछलियों वाले किस्सा में यसू ने ये नहीं कहा कि मैं खाना बढ़ा सकता हूँ, बल्कि उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। जब उसने जन्मते अंधे को बीनाई बख्शी तो उसे ये नहीं बताया कि मैंने तुम्हें बीनाई अता कर दी है, बल्कि उसे हुक्म दिया कि जा
कर शहलूक के कुएं में धो ले। फिर उसने मजबूत लहजा में कोड़ियों से कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। उसने कुफरनहूम में मफलूज से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। और अब 38 साल से मफलूज शख्स से कहा, अपना बिस्तर उठा और चल। बच्चों, जब इन अफराद ने यसू के हुक्म पर अमल किया तो शफा पा गए। अगर वो शक करते और अमल से जी चुराते तो उनके लिए ये मौजज़े भी ना होते और उनके रोग अपनी जगह कायम रहते। बच्चों, यसू के लिए मोजज़ों का इजहार कोई मसला नहीं था, मगर वो चाहता है लोग उस पर ईमान रखें, उसके अहकाम माने। क्योंकि जब लोग उसके कलाम पर यकीन कर लेते हैं, उसे खुदा का बेटा मान लेते हैं, तो ना सिर्फ उनके बदन शफा पाते हैं बल्कि उनकी रूहें भी महफूज हो जाती हैं। यसू ने अंधों को बिनाई बख्शी, कोढ़ियों और मफलूजों को शफा बख्शी। आए अब देखते हैं उसने गूंगे बहरों को कैसे शफा दी। यसू ने बहरे को शफा बख्शी। मरकज 7 बाब 31 से 34 आयत। और वो फिर सोर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दिकपुलस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की के अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा। मरकज 7 बाब 35 से 37 आयत। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना। लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। बच्चों, इस बहरे आदमी का मोजज़ा यसू की तबलीगी सरगर्मियों के आगाज में हुआ। उसने भी दूसरे बहुत से अफराद की तरह शफा पाई। यसू ने उसे कहा था ये बात किसी को ना बताए, मगर ये शफा पाने वाले सब अफराद इतने ज्यादा खुश हुए कि खुद को रोक ही ना पाए। इस तरह यसू की शोहरत हर तरफ फैलती गई। यसू ने उस बहरे शख्स को कैसे शफा दी जिसके लिए बोलना भी नहायत मुश्किल था। बच्चों, यसू उसे सिर्फ एक जुमला से बहाल कर सकता था। तो यसू ने आखिर क्यों अपनी उंगली उसके कान में डाली, क्यों थूक कर उसकी जुबान छुई? अगरचे हम समझ नहीं सकते, मगर ये जरूर जानते हैं यसू खुदावंद है, उसके पास हर बात का इख्तियार है और वो जैसे चाहे लोगों को सेहतयाब कर सकता है। आए देखते हैं यसू ने किस किस तरह शानदार अंदाज से और बहुत से लोगों को सेहत बख्शी। यसू ने उस औरत को शफा दी
جس کا خون بہتا تھا۔ مرکز 5 باب 25 سے 30 آیت۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی۔ اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا۔ لوکا 8 باب 43 آیت۔ اس پر یسوع نے کہا، وہ کون ہے جس نے مجھے چھوا؟ جب سب انکار کرنے لگے تو پترس اور اس کے ساتھیوں نے کہا کہ صاحب، لوگ تجھے دباتے اور تجھ پر گرے پڑتے ہیں۔ مرکز 5 باب 32 آیت۔ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ لوکا 8 باب 46 سے 47 آیت۔ مگر یسوع نے کہا کہ کسی نے مجھے چھوا تو ہے، کیونکہ میں نے معلوم کیا کہ قوت مجھ سے نکلی ہے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں چھپ نہیں سکتی، تو کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر کر سب لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ میں نے کس سبب سے تجھے چھوا اور کس طرح اسی دم شفا پا گئی۔ مرکز 5 باب 34 آیت۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی، تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ بچوں، اس عورت کا خون 12 برس سے جاری تھا۔ ساری جمع پونجی خرچ کر بیٹھی۔ مگر بیماری اور بھی بگڑ گئی۔ یسوع ہی اس کی آخری امید تھا۔ چنانچہ اس نے شرم و حیا کو ایک طرف رکھ کر بھرے ہجوم میں یسوع کا دامن چھو لیا۔ اسے یقین تھا یسوع کا اختیار زور آور اور بھرپور ہے۔ اور اگر وہ محض اس کا لباس ہی چھو لے تو شفا پائے گی۔ بچوں، وہاں بہت بڑا ہجوم تھا جو یسوع کو اس طرح گھیرے کھڑا تھا کہ رسائی ممکن نہ تھی۔ بہت سے لوگ تھے جو یسوع پر امڑے پڑ رہے تھے۔ ایسے میں یسوع کی قدرت اس عورت پر اثر انداز ہوئی۔ اس نے یقین اور پختہ امید سے یسوع کا دامن چھو لیا۔ اگرچہ اس وقت بہت سے لوگ بڑی آسانی سے یسوع کو چھو لیتے، مگر وہ سب کے سب تجسس کے مارے وہاں جمع تھے، جیسے کسی فلمی ہیرو کی جھلک دیکھنے آئے ہوں۔ یہی وجہ تھی وہ یسوع کی نعمتوں سے محروم رہے۔ اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے کہ آپ کیا ارادے لیے سنڈے اسکول آتے ہیں؟ کیا آپ دل میں یسوع کی طلب سجائے اس کی قربت کی خواہش کرتے ہیں کہ اس کی عبادت کریں؟ یا اچھل کود کرنے اور کہانیاں سننے آتے ہیں؟ بچوں، جو ارادہ آپ کے دل میں ہوگا وہی آپ کا صلہ بھی ہوگا، کیونکہ یسوع ہمارے ایمان کے مطابق ہی
हमारे इरादों का फल देता है। अगरचे औरत ने चुपके से यसू का दामन छुआ, मगर यसू दिलों के राज जानता है। जिस्मानी शफा के साथ साथ रूहें भी सेहत याब करनी चाहता है। चुनाचे यसू ने चाहा वो औरत अपना एहसास बेखौफी और जुर्रत से बयान कर दे। बच्चों, ये कितने मजे की बात है, क्या ऐसा ही नहीं? क्योंकि यसू ने इस बार तो कुछ कहा भी नहीं। कुछ किया ही नहीं। किसी की महज ख्वाहिश ही उसका ईमान बनकर उसे बचा गई। सादा सी बात है कि यसू सेहत देनी चाहता है। चुनाचे यसू की कुव्वत भी सेहत ही देगी। आए दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र है आज के वाकयात में बहुत से अंदाज और एहसास हैं जो मुझे सीखने होंगे। प्यारे बाप, मफलूज के दोस्त यसू से मिलने की चाह में इस हद तक गए कि छत ही फाड़ डाली। जब मेरा दोस्त बीमार हो जाए तो क्या मैं सब मुश्किलात दूर करके उसे यसू तक ला सकूंगा? वहाँ 10 कोढ़ी थे जिन्होंने शफा पाई, मगर ये सिर्फ गैर कौम का फर्द ही था जो यसू का शुक्र अदा करने वापस आया। प्यारे बाप, क्या मैं यसू को भूल जाने वाले 9 अपराध में हूँ या उसका शुक्र बजा लाने वाला 10वां? जब यसू ने कोढ़ियों से कहा अपने जिस्म काहिनों को दिखाएं, तब मैं उनमें शामिल होता तो क्या सादा दिली से ईमान रखता खुद को सेहतमंद मान लेता? मेरा ख्याल है वहीं खड़ा अपना जायजा लेता रहता, वाकई ठीक हुआ भी हूँ या नहीं। सारे मसाइल हल हो जाने का यकीन आंखों से करता, तब कहीं काहिन को दिखाने का ख्याल आता और वो औरत जिसका खून जारी था, मैं तो वो न करता जो उसने किया। खून बहना तो गंदी बात है, अगर किसी को पता चल जाता तो क्या होता? ये कितनी अफसोसनाक बात होती। प्यारे बाप, अगर ये मौजज़े मेरे साथ होने होते तो कैसे होते? अगर मैंने छत फाड़ी ही ना होती, मफलूज यसू के सामने आ ही ना पाता, अगर मैं काहिन को दिखाने चल ना पड़ता, कोढ़ ने भी जान ना छोड़ी होती, अगर मैंने हजूम में घुसकर यसू को छुआ ना होता, खून का बहना कभी ना रुकता। प्यारे बाप, कितनी ही बार तेरी अनायतें, मोहब्बत भरे हालात और मौजज़े मेरे भी मुंतजर रहते हैं कि मेरा ईमान कायम हो जाए और मैं भी ताबेदार बन जाऊं। प्यारे बाप, मेहरबानी से मुझे ईमान की दौलत दे, जुर्रत और ताबेदारी सिखा दे, इससे मैं कितना ही दूर हूँ। कहीं तेरे साथ के हसीन मौजज़े मेरी राहों से दूर ना हो जाएं। प्यारे बाप, मेहरबानी से मेरी फरियाद सुन ले, वादा यसू के नाम में, आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। गरज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर आमाल के मुर्दा है। याकूब 2 बाब 26 आयत।